Good morning, students. We were reading chapter number 2 in science, components of food. So we have read about some components in this chapter. Now we will continue from minerals. What are minerals? Minerals हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं. Minerals are inorganic salts that contain chemical elements. Just like vitamins, minerals also help our body to stay healthy. Minerals भी हमारी body को healthy रखते हैं. Each mineral has a specific function to perform in the body. They are also needed in some small quantities. Minerals are very important for the following reason. Some minerals are important for growth and repair of tissues of our body. हमारी body की growth के लिए, हमारे tissues repair करने के लिए minerals important होते हैं. Some minerals control chemical reactions that occur in the body. Some of them give the blood its correct composition. Some are essential for the proper formation of bones and teeth. तो minerals भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं स्टूडेंट्स. सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं एग्स, स्पिनच, सिट्रस फ्रूट, मिल्क. दीज आर द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. इन सभी से हमको मिनरल्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. इनफैक्ट 60-70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर. वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीडेड एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है. बॉडी फ्लूइड्स, सैलिवा, ब्लड ऑल हैव वाटर. द फंक्शंस ऑफ वाटर आर एज फॉलो. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. हमारे बॉडी में फूड की डाइजेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है ये. एंड ट्रांसफ़र ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है. फॉर एग्जाम्पल यूरिन एंड स्वेट. It helps in cellular functions, blood circulation, etc. It forms the body fluids, for example saliva, blood, etc. It regulates the body temperature. हमारी body के temperature को भी regulate करता है. And these are the sources of water: milk, fruits, vegetables, juice. Next is roughage. What is roughage? The portion of our food that does not provide any nutrient to our body but help in maintaining a body. A healthy digestive system is called roughage और dietary fiber. यानी कि roughage वो पोर्शन होते हैं फूड का जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते बॉडी को, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हेल्दी रखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं. इट इज़ कॉल्ड roughage. तो हमारी बॉडी में roughage प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है. नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ roughage. roughage हमें मिलते हैं कैबेज से और व्हीट ग्रेन से. Then we have balanced diet. Our diet must contain adequate amount of different nutrients for our body to function properly. The diet which contains all components of food required by the body in adequate quantity is called balanced diet. तो बच्चों balanced diet होती है वो nutrients जिसमें सभी, तो ये वो डाइट होती है जिसमें विच कंटेंट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन एडुकेट क्वांटिटी. एक एडुकेट क्वांटिटी में सभी हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, वो होती है हमारी बैलेंस डाइट. सो अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स. मिल्क ग्रुप, प्रोटीन ग्रुप, ये दो ग्रुप हैं, इनसे हम बैलेंस डाइट हमें मिलती है. मिल्क ग्रुप में आपके आते हैं मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, आइसक्रीम एक्सेट्रा. एंड प्रोटीन ग्रुप में है मीट, बीन्स, नट्स, पीज, एग्स, पल्सेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कैरल ग्रुप्स. Rice, bread, chapatis, etc. comes in these groups. Fruit and vegetable group, fresh fruits and vegetables. इसमें आपके fruits and vegetables आते हैं like milk group, protein group, Carol's group, fruits and vegetables group. So these are the components of balanced diet. A balanced diet is not the same for all. It varies with age, health and occupation. For example, बच्चों जो बैलेंस डाइट होती है वो सभी के लिए सेम नहीं होती है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को कम रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की इन कंपैरिजन टू अ man and other people. Okay, next is effect of cooking on nutrients. Selecting and eating the right kind of food is not enough. ज़रूरी नहीं है कि अगर फूड ठीक हो कि हम उसको खा लेते हैं, वो प्रॉपर आपका कुक्ड भी होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है कि हम कच्चा खाना भी खा लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है. तो कुकिंग इफ़ेक्ट भी न्यूट्रिएंट्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव ओबेसिटी. वॉट विल हैपन इफ़ यू ईट एक्सेस क्वान्टिटी ऑफ फूड. क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं. द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट. तो जो ज़्यादा खाना होता है जो हम खाते हैं वो हमारी स्किन में फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. द टोटल मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज. और हमारी बॉडी का जो मास होता है वो इंक्रीज होने लगता है. एंड द पर्सन इज सेड टू सफ़र फ्रॉम द ओबेसिटी. और हम कहते हैं कि ये पर्सन ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है. ओबेसिटी मीन्स बीइंग टू फैट. जब हम बहुत ज़्यादा मोटे होते जाते हैं उसको बोलते हैं ओबेसिटी. ये देखिए मोटापा जब हमारा बढ़ता है उसको बोलते हैं ओबेसिटी.
बीइंग टू फैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, ज़्यादा मोटा होना हमारे लिए गुड नहीं होता, अच्छा नहीं होता। द एक्सेस वेट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द हार्ट, ज़्यादा वेट होता है तो हमारे हार्ट पर भी ज़्यादा प्रेशर होगा। एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ अ पर्सन डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम्स, और उस पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। दिस एक्सेस फूड ऑल्सो कॉज द प्रॉब्लम ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल्सो स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड, जो ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन होता है वो भी आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिसीजेज। अवर बॉडी रिक्वायर्ड अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस डाइट की हेल्दी रहने के लिए। एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कॉज टॉक्सिसिटी एंड इट्स शॉर्टेज कॉजेज इज डेफिशिएंसी। बच्चों, जब हम कोई न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट से, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें डेफिशिएंसी यानी कि हमें बीमारियाँ, डिसीज भी हो जाती है, डेफिशिएंसी भी हो जाती है। दैट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो।